Hi Aram, welcome on Europedia. Hi, sir. How Okay, are you? Aram, today you are my special guest. You know why? Because this interaction we are doing at the time when students are waiting for their GATE result, and you are sitting in one of the best institute in the world, Technical University Munich, and you are doing your masters there in a very good branch, and you got admission in that through GATE. And you wrote GATE in very third year because you were eligible to write in third year. On the basis of that, you Yes. got admission. So, Arham, I am very sure this our interaction today will be very, very helpful for so many students, and you will be role model for them. And whatever you say, that will be very, very Mm. helpful to them. So, I welcome you again on your PDF platform. Yeah, thank you, sir. Okay, Arham, so my first starting point always is like, knowing about the individual personality. So I request you to tell us about you first, like आप कहाँ से हैं, which part of India, from Yeah, which college you graduated, and how was the journey? yeah. So, sir, I belongs to I hail from Bhopal, Madhya Pradesh, and I Okay. did my bachelor's in mechanical engineering from Triple IT Jabalpur from year 2020 to 2024. So my first 2 years went online because of Corona online. Mm-hmm. So I prepared for GATE examination during my second year and cleared GATE examination in third year. Mm-hmm. And after that, I was searching for more opportunities beyond GATE. So I tried internships, like many internships at NIT Jalandhar, followed by a few online internships. Then finally, for my bachelor thesis, I went to IIT Bombay for a 6 month internship. Mm-hmm. There, I got to know about these opportunities in MS abroad because my professor he did his postdoc from ETS Zurich, so he encouraged me like you can explore more, and he also offered me a PhD position in his lab. But I thought let's explore. So I already had a GATE score and I had a very good GPA in my college. So I thought let's try. So I just applied and yeah, I got admission in Technical University of Munich, and I joined here on 1st of October. Mm-hmm. And also along with this, I got an admit from Politecnico di Milano in mechanical engineering. Yeah. Okay. So, Aram, Polytechnic de Milano, they are also asking for GATE because Technical University Munich is asking for GATE. Yes, sir. Technical University Munich, you can apply via GATE or via GRE. They have both options. So as an Indian, we can apply via GATE, and for IITians, they don't require GATE as well. You can Mm. directly apply without GATE or GRE if you are an Okay. IITian. And Mm. for Politecnico Milano, there is no such requirement for GRE or GATE. Mm. If you can also if you have GATE score, you can apply. It will enhance your Mm. profile only. So I Mm. applied. I also submitted GATE scores there. Mm. Most of my questions to you will be the questions which normally student ask. And one of the question they ask is, technically University Munich GATE score is required as alternate to GRE. What about other technical universities in Germany? Is GATE going to help us? That is their question. Yes, sir. Personally, I feel like if you are Mm. from core engineering background, like mechanical, civil, electrical, you should try GATE Mm. because first of all, it will enhance your technical knowledge. Okay. And if you just qualify GATE, like have some GATE score around 500 or 400 beyond, like you can apply to these German universities like TU Munich and few Mm. universities like RWTH Aachen. They recently they are not allowing GATE score in every courses, but selectively like there are few courses if you where you can apply GATE scores, and Mm. there are few applied universities where still you can use your GATE score. I specifically don't remember the name right now because I had a list of those universities that those accept like GATE scores. So yeah, you can use your GATE score anyhow, and like it's you can as an additional document you can always apply your GATE score with Mm. your application. That's a Okay. bonus. Okay, so Aram, in Germany, for I think from 2022 onward, there is a requirement of APS certificate. So, Mm. how the situation has changed in Germany in the past couple of years? I mean, some universities have started charging fees, which earlier used to be free or something like that. And Mm. APS certificate, a new dimension has been added for MS. So, how do you see these changes? So, what are the updates for the students? Yes, like recently they applied this APS barrier for Indian student, Pakistanis, and I guess for Asian countries in China, including because of this documentation issue they are facing, students they are making fake documents for their graduation
So to kind of scrutinize students, they introduce this APS certificate, and I think it's a legitimate process. Like you don't have to worry if you have like done your bachelor's from a decent college. You don't have to worry at all. You just have to follow the process, apply for APS, and you should apply APS for APS like 2-3 months before your application starting date, so that you have your APS in your hand Okay. while you're applying for universities. So for me, I applied a APS certificate on December end, and then I got my APS by January. Within a month, I'm lucky that I got my APS so early. And like, yeah, the one main thing while applying for APS is that you have to use source of credibility, like from where they can cross check your documents. So for that, you can either use your institute official website, from where they can log into your account and can see your grade transcripts, or else Okay. you can just give an email ID of a professor, so that they can directly contact your professors and ask them Okay. whether this student is Okay. from your university or not. So this Okay. is the main criteria. Apart from that, yeah, it's a simple process. Just follow, don't panic. Yeah, that's it. ओके। अब आराम, बहुत से ऐसा कैंडिडेट स्टूडेंट्स जो गेट लिखा लेकिन गेट में अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं आया, Hmm. and now obviously as you know gate is just one exam, it is exam only, that day may not be your day, does not mean कि you don't deserve to be in good college। Yeah. तो अब ऐसा बहुत सा इंडिविजुअल कैंडिडेट होता है जो देखता है कि मेरे को हायर एजुकेशन अच्छी जगह से मिले, और जब एमएस की बात आती है तो जर्मनी इज द नो डाउट वन ऑफ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। सो Hmm. जर्मनी में वो जाना चाहता है, एक चीज जो उनको रोकती है वो ये कि पैसा बहुत खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा और कैसे उसको कम किया जा सकता है और मेरे को कितना पैसा दिखाना है। तो फाइनेंस पार्ट ऑफ एमएस इन जर्मनी फॉर 2 years प्रोग्राम, वो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सो फाइनेंस का तो हाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कंपैरेटिवली हमेशा ये कहूंगा मैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में हमेशा यूरोपियन कम है। कंट्रीज बेटर हैं इन टर्म्स ऑफ हम्म। फाइनेंस। तो हम्म। वो तो आप भूल जाइए कि अमेरिका में अगर आप जा रहे हैं तो आपको ट्यूशन फीस बहुत है। वगैरह दे के ही आपका बहुत आराम से 40 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाता है इजिली। एंड हम्म। माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज स्टडिंग इन इंपीरियल एंड ही इज पेइंग लाइक 40 lakhs for a year as a tuition fee, so that's too much, but still he got a scholarship, so it's okay for him. हम्म। But for normal students, yeah, Germany is okay. And हम्म। अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट फ्री होती है यूनिवर्सिटीज। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, जैसे TUM, तो इसने ट्यूशन फीस इंट्रोड्यूस की है। So like I have to pay a tuition fee of 6,000 euros per semester, but for me, I got a scholarship, merit-based scholarship, so I don't have to pay tuition fee for my first year, and for the next year, I can apply internally with my second semester result at TUM, and I can apply internally for next round of scholarships. So yeah, आप scholarships देख सकते हैं इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज के, एंड डार्ट के scholarships भी होते हैं। सो खासतौर से इंडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो IITs में होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम होता है डार्ट का। तो अगर आप IIT से मास्टर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जर्मनी में आ सकते हैं एक्सचेंज सेमेस्टर के लिए 6 मंथ के लिए ना। वो आपको पूरा फंड करेंगे, आपको 900 यूरो प्लस देंगे, रहने खाने का, फ्लाइट टिकट सब देंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है IITs के स्टूडेंट के लिए जो मास्टर्स करना चाहते हैं, गेट के स्कूल से IIT में जाएं, एंड IIT से आप मास्टर करके यहाँ पे भी आ सकते हैं 6 मंथ के लिए एक्सचेंज ओके। के लिए। एक अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आप किसी अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटीज होती हैं यहाँ पे, पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो पब्लिक में जनरली फ्री होता है। बार्डन बुटनबर्ग एरिया है, वहाँ पे थोड़ा फीस ला दिया है 1500 यूरो, लेकिन स्टिल वो इतना कुछ ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज देखें तो। एंड हाँ, अगर आप फाइनेंसेस का खुद देखें, मेरा अगर मैं अपना बताऊं तो पर मंथ मैं म्यूनिक में रहता हूँ। म्यूनिक इज वेरी एक्सपेंसिव सिटी एंड हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड है यहाँ पे लाइफ का एकदम। तो यहाँ पे तो हाउसिंग रेंट ही सबसे मेन चीज होता है आपका। अगर आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है तो यू कैन इजिली, डॉर्मेट्री में आपको 340 से 400 यूरोस के बीच में आपका रेंज आएगा पर मंथ, सिर्फ हाउसिंग का। फिर आपका ग्रोसरीज, ग्रोसरीज अगर आप चाहें तो 80 यूरो में आराम से खत्म कर सकते हैं। 18 विद इन 80 यूरोज यू कैन एंड योर लिविंग एक्सपेंसेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हेल्थ इंश्योरेंस आपको देना पड़ता है। सो करेंटली उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा बढ़ा दिया है, तो फॉर मी इट्स 140 यूरोज, बिकॉज एज पे भी डिपेंड करता है ये। तो हमारे अभी मेरे लिए 140 यूरोज है। एंड इसके बाद आपका और खर्चे में आ जाता है मोबाइल का खर्चा। तो पर मंथ आपका 10 यूरो, मान लीजिए आप सस्ता पैक लेंगे तो 10 यूरो का आपका मोबाइल का खर्चा आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका डॉयचलैंड टिकट, और एंड 30, अभी थोड़ा प्राइस इंक्रीज किया तो 38 यूरोस का हो गया है वो टिकट।
सो मतलब कुल मिला के आप चाहें तो 650 यूरोज में खत्म कर सकते हैं अगर आपको डॉर्मेट्री मिला ओके। हो तो। लेकिन अगर आपको डॉर्मेट्री नहीं मिला है, जैसे मैं म्यूनिक में रह रहा हूँ एंड मैं शेयरिंग में रह रहा हूँ, 450 यूरोज पे कर रहा हूँ पर मंथ, तो मेरा अप्रोक्सीमेटली 750 यूरोज खर्च हो जाता है पर मंथ। तो 750 यूरोज को इंडियन में अगर आप कन्वर्ट करो, वही 90 से हमेशा मल्टीप्लाई कर लिया करें, तो लगभग 65-60-65 हजार के आसपास कुछ ऐसा बैठता है। वो आपका मंथली खर्चा है। हाँ, ये मंथली खर्चा है। एंड फिर मतलब आपके पास चांसेस रहता है पार्ट टाइम वगैरह करके आप चाहें तो मंथली अपना एक्सपेंसेस बचा सकते हैं, ब्लॉक्ड अमाउंट भी रहता है आपके पास। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नया आए हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट ईयर तो आप ना ही करें ये सब। पार्ट टाइम करना हो तो आप समर वो क्या बोलते हैं, सेमेस्टर ब्रेक मिलता है हमें एग्जाम के बाद 1-2 महीने का, तो उसमें आप फुल टाइम लग के पार्ट टाइम कर सकते हैं। उसमें आप आराम से डिसेंटली 1500 200 2000 यूरोज कमा सकते हैं, 1500 से 2000 यूरोज कमा सकते हैं। तो वो एक तरीका रहता है। एंड आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर आई गेस आपको इतना कुछ पता चल जाता है जर्मनी के बारे में, आप यहाँ पे एक्वेंट हो जाते हैं चीज़ों से, तो फिर उसके बाद आप पार्ट टाइम पे निकलते हैं, आपको इजीली मिल भी जाता है। एंड आप थोड़ा जर्मन स्पीकिंग, अगर आपको जर्मन की लैंग्वेज आती है ना, तो यू कैन इजीली लाइक कोप अप विद पार्ट टाइम्स एंड ऑल। एंड यहाँ पे ग्रोसरीज में या लाइक एक एक वेबसाइट है, इसका नाम, एक वेबसाइट, मैं 2 मिनट बताता हूँ आपको नाम। यहाँ जेन जॉब्स करके है, ये जेन जॉब है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है। मतलब मोस्टली मेरे जो फ्रेंड्स है इस जेन जॉब पे मतलब यहाँ पे ऑफर्स आते रहते हैं आपको कि मतलब कहीं भी स्टोर में काम के लिए या कहीं भी, तो मतलब ये पार्ट टाइम के लिए आप कर सकते हैं। एंड आपके ओके। स्टूडेंट इंटर्नशिप्स भी होती हैं, कॉलेज में आप जाके काम कर सकते हैं, प्रोफेसर के अंडर काम कर सकते हैं, स्टार्टअप है स्टार्टअप में काम कर सकते हैं, लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास तरीके होते हैं निकालने के लिविंग एक्सपेंसेस। लेकिन मैं ये कहूंगा स्टिल कि फर्स्ट ईयर में आप काम ना करें, पढ़ाई करें, लैंग्वेज सीख सकते हैं तो लैंग्वेज सीखिए, वो आपको आगे मदद करेगा लॉन्ग टर्म में। ओके। सो अरविंद, एक क्वेश्चन ये भी होता है कि जर्मनी में पढ़ने के लिए या एडमिशन लेने के लिए क्या मेरे को जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए? नहीं, सर यहाँ पे 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं, इंग्लिश टॉट होते हैं और जर्मन हाँ। टॉट। एंड कुछ कुछ में इंग्लिश और जर्मन दोनों होते हैं, बहुत। तो हम्म। बेसिकली अगर आपको सिर्फ इंग्लिश टॉट में जाना है तो आप इंग्लिश टॉट में डायरेक्ट जा सकते हैं, हम्म। उसमें हम्म। जर्मन की जरूरत नहीं पड़ती। तो आई एम ऑल्सो हम्म। डूइंग एन इंग्लिश टॉट कोर्स, सो इट्स हम्म। कम्प्लीटली इंग्लिश, आई डोंट हैव टू प्रोवाइड हम्म। एनी लैंग्वेज हाँ, सर्टिफिकेट। अगर आपको बाद में जॉब करनी है तो उसमें हेल्प होता है जर्मन लैंग्वेज का। या ऑफ कोर्स वो हम्म। तो है सर। हम्म। जर्मन हम्म। अगर आपको आती है तो वो हमेशा आपको प्रेफर करेंगे। यहाँ पे ये है, हम्म। अगर हम्म। एक इक्वल कैंडिडेट है विद हम्म। लाइक, भले ही वो इंडिया से आया है लेकिन उसकी स्किल्स ज्यादा है, लेकिन उसको जर्मन नहीं हम्म। आती है एज कम्पेयर टू एक हम्म। जर्मन बंदा है, हम्म। उसको भले ही तो उसको डिसेंट से स्किल, ऑब्वियसली। बेसिक स्किल है, उसको हमेशा लोग प्रेफरेंस देंगे, ये मैंने देखा है। ऑब्वियसली। अच्छा, अरुण, आपने एक टर्म यूज किया, ब्लॉक्ड मनी, ब्लॉक्ड अमाउंट और समथिंग। हम्म। तो जब स्टूडेंट इंडिया से चलेगा, जैसे आप जब इंडिया से चले तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिल चुका था या जर्मन जाने के बाद ही पता लगा कि मेरे को स्कॉलरशिप मिलेगा? हाँ सर, मेरे को लकीली तो मुझे पता चल गया था पहले ही कि हम्म। स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो हम्म। इसलिए मैंने इटली का भी प्लान छोड़ दिया था, मिलान का, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन फीस है अभी टीयूएम में 6000 यूरोज पर सेमेस्टर, तो काफ़ी एक्सपेंसिव था। सो हम्म। तो मैंने पहले स्कॉलरशिप अप्लाई किया एंड मुझे स्कॉलरशिप मिल चुका था ये। हम्म। हम्म। सितंबर से पहले ही मुझे पता चल गया था कि स्कॉलरशिप मिल रही है। हम्म। तो तो मैं स्कॉलरशिप के जैसे ही मिला तो फिर मैंने कंसिडर किया जर्मनी ही आना है। एंड मेरे को सर एक और स्कॉलरशिप मिली है, डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम। हम्म। सो वो हम्म। मंथली 300 यूरोज भी मिलता है मुझे। सो हम्म। वो भी 2 स्कॉलरशिप मिली थी, तो मैंने फिर कंसिडर किया टीयूएम। तो आपको जो दूसरा स्कॉलरशिप मिला वो वहां जाने के बाद मिला या इंडिया में मिल गया था? नहीं सर, वो भी पहले ही पता चल गया था। आपको मिल गया था पहले। तो ये किस बेस पे मिलते हैं स्कॉलरशिप? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर बैकग्राउंड और समथिंग? हाँ सर, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्योरली आपके जीपीए पे फोकस करती है। जैसे कि हम्म। हर हर जैसे टीयूएम में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मैं हम्म। सीआईटी डिपार्टमेंट में हूँ। तो सीआईटी डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, डाटा साइंस का है, सीएससी का है, हम्म। कंप्यूटेशनल हम्म। मैकेनिक्स है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो हर इंडिविजुअल सेक्शन के हम्म। लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप लोग डिसाइड करके रखते हैं कि हाँ भाई कि ये सीआईटी का बच्चा है तो इसमें से हम्म। 60 स्कॉलरशिप इन इन लोगों के हम्म। लिए। कोई मैनेजमेंट के वाले हैं, हम्म। तुम स्कूल ऑफ हम्म। मैनेजमेंट के तो इनके लिए इतना है, तुम स्कूल हम्म। ऑफ नेचुरल साइंस के तो इनका इतना, मतलब कोटा डिसाइड रहता है। तो आप अगर आप हम्म। उन कोटा में अगर आप आ जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। एंड हम्म। हाँ, अगर प्रोफाइल की बात करें तो सबसे ज्यादा ये लोग जीपीए पे देखते हैं आपके, मतलब हम्म। कितना आपका हम्म। सीजीपीए है। फिर ये जो हम्म। डॉयचलैंड स्टाइपेंडियम है, ये भी एक तरीके से परफॉर्मेंस बेस्ड ही है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको सोशल एक्सपेक्ट देखते हैं कि आपने मतलब कहीं ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट किया है क्या, क्या है, आपने सोशल हम्म। एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है कि नहीं, तो ये हम्म। थोड़ा उसमें देखते हैं। बस ये हम्म। और बाकी कुछ इंटरनल स्कॉलरशिप्स और भी रहती हैं, कुछ बुक्स बुक्स के लिए स्कॉलरशिप्स रहती हैं, पर ओके। मंथ आपको
500 हम्म 1500 यूरोज दे सकते हैं, लेकिन वो सब आपको हम्म इंटरनली ही मिलेगा। इंटरनली के लिए आपको ना अच्छा जीपीए मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। Okay. Okay. Now, Aram, tell me, if somebody does not get any scholarship, कोई भी स्कॉलरशिप हम्म। उसको नहीं मिला, देन हाउ मच मनी ही टू ब्लॉक, मतलब उसको कितना पहले ही अपने अकाउंट में डालना पड़ता है, जो आप वो होता है सिस्टम। सो हाउ मच इज हाँ दैट एंड टोटल कितना सर, पड़ेगा उसको? जब मैं आया था उस टाइम पे ब्लॉक्ड अमाउंट थोड़ा 10,000 समथिंग यूरोस था। अभी बढ़ गया है। रिसेंटली ब्लॉक्ड अमाउंट आई थिंक 11,000 हो गया है। मैं देख के हम्म बताता हूँ। हम्म हम्म। तो अभी सर 992 यूरोस पर मंथ हो गया है, तो आपको 11,904 यूरोस ब्लॉक करा के आने पड़ेंगे इंडिया से। तो ये तो हम्म। आपको कंपलसरी होता है, मतलब सर अगर तो आपको जो रफली स्कॉलरशिप मिलती है। रफली हमारा हो गया 1 लाख के 10 लाख के आसपास, कितना होगा ये? हाँ, लगभग 10,50,000 के आसपास आ गए, टेन पॉइंट हाँ, फाइव ये आपको अकाउंट में शो करना है। ये आपको शो करना रहता है। एंड इसके हम्म भी तरीके होते हैं। अगर आपको शो नहीं करवाना है तो इसके दो तीन तरीके होते हैं कि मतलब या तो आपको कोई जान पहचान का हो, हम्म स्पॉन्सरशिप देते हैं आपको जर्मनी में कि हाँ ये मैं जान पहचान का, मेरा ब्लड रिलेशंस का मतलब बंदा है, एंड आई कैन हम्म स्पॉन्सर हिम। हम्म सो हम्म ऐसे केसेस में आपको ब्लॉक्ड अमाउंट नहीं दिखाना पड़ता है। या तो आपके हम्म पास कोई स्कॉलरशिप हो, जैसे डार्ट की स्कॉलरशिप हो, जो आपको शो कर रहा हो कि आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिली है, मतलब 900 यूरोस दे रहे हैं। बेसिकली आप हम्म डिपेंडेंट नहीं किसी पे अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। हम्म सो हम्म ये है, ये अच्छा, तरीके हैं। टोटल एक्सपेंडिचर कितना पड़ जाता है? और हम एज यू आर सेइंग कि नहीं, काम मत करना पड़े, इस पढ़ाई पे ध्यान दो। देयर आर सो सर मेनी पेरेंट्स हाँ जो बोलते हैं कि अब वी विल स्पॉन्सर। तो कितना हाँ, खर्चा पड़ता है टोटल? तो सर देखिए 11,000 जो हमने बताया, 11,900 समथिंग, या सो 11,904 यूरोज, इससे आपका एक साल का खर्चा हो जाएगा। आपको पर मंथ इसी में से 992 यूरोज मिलते रहेंगे ठीक है। पर मंथ। तो नाइन हम्म नाइनटी मैंने आपको बताया कि 750 यूरोज मेरा खर्चा होता है मंथली का, हम्म और आपको पर मंथ 992 मिलता ही है आपका ब्लॉक अकाउंट से। तो आपका मतलब कुछ अमाउंट बच रहा है। तो आप ये हम्म बच बचा के मतलब ये 12 महीने का है, तो आप 13-14 महीना मान लीजिए कर लेंगे इसे, फिर आपको निकल फिर से जाएंगे इससे। जरूरत पड़ेगी। या तो मतलब 20,000 यूरो की आपको जरूरत पड़ेगी आई थिंक, लिविंग टोटल। एक्सपेंसेस के लिए। जो मैंने काउंट किया अपना है सर, तो मेरे हिसाब से 2 साल के लिए मुझे 15 लाख रुपए चाहिए रहेगा, डिसेंट अच्छा। लाइफ के लिए। डिसेंट हम्म लाइफ के लिए 15 लाख रुपए आपको चाहिए रहेगा। अगर आपकी ट्यूशन फीस नहीं है कॉलेज में, तो हम्म आपका 15-16 लाख में आराम से हो जाएगा 2 साल का खर्चा। और अगर ट्यूशन फीस भी है? ट्यूशन फीस है तो फिर वो ट्यूशन फीस आप उसको ऐड ऑन कर दीजिए 16 लाख में, जितनी भी फीस है हम्म बस। ओके। अच्छा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है अरहम, के मेरे को शुरू में बिल्कुल भी स्कॉलरशिप नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंटरनली, और 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर के बाद अगले सेमेस्टर का आपने बताया कि खर्चा आपको देखना पड़ेगा, कि हम्म। क्या ये स्ट्रेटेजी इंडिविजुअल रख सकता है कि मैं अपना 11 लाख रुपया या 10 लाख रुपया अरेंज किया, 1 साल का मेरा खर्चा अरेंज किया, उसके बाद आई एम वेरी श्योर कि मैं अच्छा काम करूंगा, या मैं कुछ काम कर लूंगा और अगले साल के लिए मैं कुछ निकाल लूंगा? इसकी प्रोबेबिलिटी होती है? कर सकते हैं ऐसे? ऐसा कर तो सकते हैं, डेफिनेटली कर हम्म सकते हैं। मेरा दोस्त है यहाँ पे, वो खुद मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिली थी उसे, वो पे कर रहा था फीस, लेकिन उसने जेन जॉब्स पे काम किया। पर मंथ वो 700 यूरोज कमा रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, अच्छा रिजल्ट्स भी ला रहा था। तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ओके। उसकी एक बात ये थी कि वो जर्मन सीख के आया था, उसको अच्छा। B1 लेवल जर्मन आती थी। तो वो, मैं यही कह रहा हूँ कि आपको जर्मन आती होगी तो आप इजिली यहाँ पे चीजें मैनेज कर पाएंगे। और मैं ओके जर्मन सीख के नहीं आया, तो मेरे लिए डिफिकल्ट है यहाँ पे काफी, क्योंकि ओके। आप स्टोर में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो आपको काम इंटरेक्शन करवाना। करने के लिए आपको हम्म जर्मन चाहिए ही। आप कहीं पे भी हम्म हर जगह गूगल ट्रांसलेट, आप सोचते हैं कि गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लूंगा मैं, वो ऑकवर्ड हो हम्म जाता है सिचुएशन जब आप करते हैं हम्म यूज। तो वो ना ही करिए, आप सीख के आइए जर्मन। अगर आप थर्ड हम्म ईयर में है स्टूडेंट, अगर कोई हम्म बैचलर्स में, तो आपके पास टाइम है। अपना हम्म प्रोफाइल भी बिल्ड करिए, सीजीपीए हम्म बनाइए। सबसे पहले आपको फोकस सीजीपीए और जर्मन, दो चीज पे होना चाहिए अगर आप जर्मनी हम्म कंसिडर कर रहे हैं तो। एंड अगर आप हम्म फोर्थ ईयर में है, तो आप सीजीपीए तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, तो आप जर्मन सीखिए। हम्म वही, हम्म तो डिपेंड हम्म करता है पर्सन टू पर्सन। एंड हम्म आपने जैसे कहा कि मैनेज कर सकता है कि विदाउट स्कॉलरशिप हम्म अच्छा पढ़ के, हाँ आप अच्छा पढ़िए जीपीए, लेकिन हम्म आपको ना 1 से लेके 1.5 के बीच में रखना पड़ेगा आपको स्कॉलरशिप हम्म चाहिए तो। बात ये है। और हम्म यहाँ थोड़ा हम्म जर्मनी में स्टडीज मुश्किल होती हैं, तो मैं हम्म अज्यूम करता हूँ कि मतलब नहीं मिलेगा, मतलब हम्म पढ़ाई नहीं कर पाओगे अब उतना, क्योंकि आप नए नए आते हो, आपको मुश्किल होता है यहाँ पे चीजें। ऐसा है। तो फर्स्ट ईयर में ओके। काफी मुश्किल होता है, सेकेंड ईयर से आप हम्म हो जाते हैं, मतलब एक्वेंट सिस्टम से, कैसे एग्जाम देना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ऐसा। हम्म। अच्छा, Arab, now you are sitting in one of the very good universities, हम्म। global universities, technical university Munich. हमें जर्मनी यूनिवर्सिटीज के बारे में ब्रीफली थोड़ा सा बताओ। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज आर रियली गुड एंड व्हाट इज द कैटेगराइजेशन? जैसे इंडिया के बारे में कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे आईआईटीज आता है, ट्रिपल आईटीज आईआईटीज। आता है, एनआईटीज आता है। तो जर्मनी का बताओ। हाँ, सो सर जर्मनी में सो टॉप की जो 9 यूनिवर्सिटीज हैं टेक्निकल में, वो TU9 कहते हैं। तो हम्म 9 यूनिवर्सिटीज वो तो अच्छी हैं, सारी की सारी 9 यूनिवर्सिटीज बहुत ही अच्छी TU9। सो हम्म इसमें से आप किसी में भी एडमिशन मिलता है तो आप बिना किसी ले दिक्कत लेना के जा चाहिए। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
एंड बाकी हॉक्सुलेज होते हैं, अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो हम्म, इनमें इनमें थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है कोर्सेज, एंड जो टेक्निकल हम्म, यूनिवर्सिटीज रहती हैं वो थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड रहती हैं। तो अगर ओके। आपको पीएचडी करना है तो आप हम्म, कभी भी अप्लाइड यूनिवर्सिटीज में मत जाइएगा, हॉक्सुले में मत हम्म, जाइएगा। हम्म, आप हमेशा टीयूज ही प्रेफर करिएगा अगर आपको पीएचडी करना हम्म, है, फर्दर स्टडीज करना है तो। हम्म, एंड या प्लेसमेंट वाइज मैं देखूँ तो प्लेसमेंट में कहीं दिक्कत नहीं होता है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है। हम्म, एंड टीयूज ज़्यादा प्रेफरेबल होती है क्योंकि थोड़े वेल नोन होती हैं। जैसे टीयू म्यूनिक है तो यूरोप में आप इसको मतलब हम्म, यूरोप में पूरी वेल नोन है ये यूनिवर्सिटी। आप यूरोप के दूसरे देशों में जाएंगे, पूछेंगे टीयू टीयू म्यूनिक क्या है, तो लोग जानते हैं। हम्म, ये हम्म, थोड़ा इसका फायदा होता है कि अगर आपको एमएस के बाद जर्मनी छोड़ना भी हो, मान लीजिए आपको मन नहीं कर रहा जर्मनी में रहने का, तो आपके पास हम्म, अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपकी डिग्री वैलिड है। आपको लोग हम्म, जानते हैं कि हाँ आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। टीयू बर्लिन से आपने पढ़ाई की तो लोग जानते हैं कि हाँ टीयू बर्लिन से इसने पढ़ा है भाई, ये हम्म, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आरडब्ल्यूटीएच भी जानते हैं लोग। तो टीयू नाइन तो हम्म, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं ही, इनमें आपका हम्म, हो गया तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके हम्म, अलावा बाकी जो हॉक्सुला वगैरह हैं उनमें भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आपको जर्मनी में रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हम्म, और हम्म, हॉक्सकुले का ये फायदा है कि आपको थोड़ा ये लोग स्किल ओरिएंटेड ज्यादा बनाते हैं, तो आपके चांसेस हम्म, ज्यादा रहेंगे कि आप आसानी से जॉब मार्केट में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये फायदा हम्म, रहता है। हम्म, तो उसमें लेकिन आपको अगर आपने मन बना लिया जर्मनी आने का, तो हम्म, मेरे ख्याल से इसमें यूनिवर्सिटी उतना मैटर नहीं करती है हम्म, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम्म, जैसे हमारे इंडिया में है कि आईआईटी से हम्म, पढ़ा है भाई तो तो इसको जॉब अच्छी ज्यादा मिलेगी। प्रेफरेंस देंगे। ऐसा नहीं है हम्म, यहाँ पे, यहाँ पे सबको हम्म, इक्वली प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ ओके। हॉक्सुले म्यूनिख भी है, उसको भी उतने हम्म, प्रेफरेंस देते थे जो टीयू म्यूनिख को देते हैं, तो उसमें ओके। कोई दिक्कत नहीं। आप में ये बस बहुत स्किल अच्छा होनी है। चाहिए। हम्म। तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज अगर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जहां पे जैसे आपने बताया कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, फ्री एजुकेशन है, तो स्टूडेंट को उसमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जॉब तो वो ले ही लेगा बाद में। हाँ। हम्म। हम्म, वो तो तो है दैट ही दैट सर, इज। कि हाँ अगर जैसे बच्चे को पढ़ाई करना है, खूब रिसर्च में अच्छा करना है, तो उसको टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रेफर करनी चाहिए। अगर उसको खूब अच्छी लैब एक्सपीरियंस करना है, मतलब हाई साइटेड प्रोफेसर वगैरह से अगर इंटरेक्शन करना है, तो मतलब टीयू बेटर है उस कंपैरिजन में। लेकिन अगर जॉब के लिए आप आ रहे हैं तो हॉक्सुले भी आप कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं जानता हूँ जैसे टीएच इंगलस्टाड वगैरह है, ये सब बहुत अच्छे हैं ऑटोमोटिव के लिए। ओके। तो यहाँ पे बाजू में ही मतलब इनके ऑडी वगैरह की मतलब फ्रेंचाइजी है, तो बच्चे जाते हैं काफी वहां से। हम्म। अच्छा, और हम एक और चीज मेरे को बताओ, जैसे जो मेरे से स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि इट्स ओके वी विल इन्वेस्ट द मनी एंड स्टूडेंट एजुकेशन ले लेगा। बट दूसरी बात, वो दो उनके अप्रीहेंशन होते हैं, एक जॉब लगने का मार्केट, नंबर टू रहने का मार्केट। जैसे वो बोलते हैं पीआर है या रहने का स्कोप है। आजकल एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जैसे अमेरिका बोल रहा है रिस्ट्रिक्शंस लगाना है। तो हाउ गुड इट इज टू डिसाइड कि ओके जर्मन चलते हैं, वहीं जॉब भी करेंगे, कुछ साल वहां पे रहेंगे भी, और हमें जॉब लग जाएगी, उस पर्सपेक्टिव से। रहने के चक्कर अगर आपको लॉन्ग टर्म, मतलब मेरे ख्याल से तो यहाँ आके डिसाइड करना चाहिए आपको रहना है कि नहीं, क्योंकि आप ओके। यहाँ रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ के सोशली कैसा फील कर रहे हैं आप। सो अगर आप स्टडीज के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, 2 साल रहिए, आपके पास टाइम रहता है, आप समझते हैं कैसा कल्चर है यहाँ का। हम्म, तो उसके बाद डिसाइड करिए। एंड यहाँ का पीआर सिटीजनशिप थोड़ा इनने इंक्रीज किया है इस टाइम, कि आप मतलब सर्टेन अमाउंट आप कमाते हैं, सर्टेन अमाउंट लाइक 45,000 यूरोस था आई गेस, कुछ एवरेज इनका इनकम रहता है, उसके ऊपर आप कमाते हैं। एंड आपको जर्मन का एक सर्टेन लेवल होता है, उतना आपको जर्मन आता है, तो आपका स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस, मतलब 5 साल के अंदर आप शायद से पीआर ले सकते हैं, ऐसा कुछ रहता है। तो हाँ पीआर के तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज रहती ही हैं। हम्म, थोड़ा ये लोग इन लोग का थोड़ा नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होता है कि आपको मतलब ना। एकदम यहाँ के प्रोसेस आपको मतलब हम्म, जर्मन सिखाएंगे। आपको जर्मन आने हम्म, चाहिए, यहाँ के कल्चर के बारे में पता हम्म, होना चाहिए, तो वो प्रोसेस भी हम्म, रहता है, तभी आपको हम्म, सिटीजनशिप देते हैं ये लोग। हम्म, तो हम्म, पहले आप यहाँ आइए, पढ़ाई करिए, हम्म, 2 साल फिर अगर आप देखें। पढ़ाई करके समझ में आता है कि रहना है तो रहिए। और वो हम्म, प्रोसेस तो आपके 2 साल तो वहाँ पे स्पेंड होएगा, वो इंक्लूड करते हैं हम्म, उसको आपके स्टे हम्म, में। तो उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, वो बेटर रहेगा। हम्म। अच्छा, अब अरम आप अपनी यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक के बारे में और जिस कोर्स में आप मास्टर्स कर रहे हैं उसके बारे में बताओ। Yes, sir. So, sir, TU Munich, sir, like world में it's a very very well renowned university, and हम्म, engineering and technology में like world QS rank 19th है, हम्म, and overall global universities में QS rank I think 30 है, 28th है। So हम्म, like within top 30 यूनिवर्सिटी है, so very well recognized है। and मैं यहाँ पे computational science and engineering की पढ़ाई कर रहा हूँ। हम्म, and as I told you that I did my bachelor's in mechanical engineering। सो मैंने हम्म, बेसिकली ये फील्ड इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा कंप्यूटर ओरिएंटेड था। एंड इसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के एप्लीकेशंस हैं, तो मैं चाह रहा था कि कुछ मशीन लर्निंग वगैरह का काम करूँ, सिमुलेशन में जाऊँ, तो इसलिए मैंने ये चीज़ चूज़ की। एंड हम्म, इस कोर्स का ये फ़ायदा है कि सर इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स हैवी कोर्स है ये।
टफ है, लेकिन ये चीज़ है कि आप इस कोर्स को पढ़ के डेटा साइंस वगैरह की फील्ड में जा सकते हैं, सिमुलेशन की फील्ड में जा सकते हैं, क्वांटिटेटिव फाइनेंस एक फील्ड होती है उसमें भी जा सकते हैं। एंड मतलब और भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, मतलब मेरे पास electives हैं यहाँ पे चूज करने के, कि मैं क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग में जा सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन में जा सकता हूँ, या फिजिक्स बेस्ड मॉडलिंग में जा सकता हूँ, या CFD इंजीनियर बन सकता हूँ, या स्ट्रक्चरल एनालिसिस CAE इंजीनियर। बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, electives काफ़ी हैं इस कोर्स में, तो मैंने इसलिए लिया था। एंड बाकी दूसरा बात ये है कि मेरा यहाँ तो प्रोफाइल मैच कर रहा था, जो मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह की थी, एंड जो मेरा कोर्स जो मैंने बीटेक में किया था वो थोड़ा मैच कर रहा था यहाँ के रिक्वायरमेंट से, तो इसलिए एडमिशन भी मिल गया। एंड बाकी मेरे सीनियर भी हैं, वो भी मेरे ही बीटेक ने भी ट्रिपल IIT जबलपुर से किया था, तो वो भी सेम कोर्स में थे, तो उन्होंने भी थोड़ा गाइड किया था मुझे कैसे एक कोर्स है, कैसा है इसके जॉब प्रोस्पेक्ट वगैरह। ओके, सो अरम, जैसे ये आपने अप्लाई किया था तो कौन से डेडलाइंस कब होते हैं? जैसे अभी मार्च चल रहा है, 9 मार्च है आज, हम्म। तो डेडलाइंस कब होते हैं? और आपने ज्वाइन कब किया था कोर्स? वहां जाके आपके सेशन कब स्टार्ट हुए थे? सर, तो सर डेडलाइन तो थी यहाँ की 31 मार्च, और मैंने 31 मार्च के 1 घंटे पहले डेडलाइन से एक घंटे पहले ही अपना एप्लीकेशन हम्म। सबमिट किया था। तो सो यहाँ ये हम्म। मैटर नहीं करता कि आप पहले अप्लाई कर दें या बाद में अप्लाई हम्म। कर दें। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे FIU अरलांगन है यहाँ का, मैंने सुना है कि हम्म। 15 फरवरी को एप्लीकेशन ओपन होते हैं, तो आपको जितने 1 वीक के अंदर अगर आप अप्लाई कर दो तो चांसेस बहुत रहते हैं। तो हम्म। जैसे TU म्यूनिख का तो ये नहीं है कि ये लोग कोई प्रेफरेंस नहीं देते हैं आपको। इनका हमेशा ये 31 मार्च तक इनका फर्स्ट राउंड चलता है इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए, फिर सेकंड राउंड 1 मई तक जाता है। वो सेकंड राउंड थोड़ा लेट आता है हम्म। एडमिशन, तो वीजा वीजा में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन स्टिल अगर हम्म। आप लेट हो गए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो थर्टी हम्म। फर्स्ट तारीख को मैंने अप्लाई किया था, फिर मेरा रिजल्ट मई में आया था। मेरे को हम्म। याद है कि मैं अभी भी जब कॉलेज गया था अपना बीटेक थीसिस का मतलब प्रेजेंटेशन की प्रिपेयर कर रहा था, अगले दिन मेरा प्रेजेंटेशन था, रात में PPT बना रहा था, एक मेल हम्म। आया टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक का, वहाँ के हम्म। प्रेसिडेंट का, कि आपका कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड। हम्म। तो बस हम्म। उसी दिन लाइक हम्म। 24 मई था वो, तो उस दिन हम्म। मेरा एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद हम्म। मैंने वीजा वगैरह की प्रोसेस करी विद इन 1 मंथ, सब 2 मंथ्स लगे थे मुझे। मई जून जुलाई में मेरा वीजा का प्रोसेस भी हो गया था। फिर हम्म। September 24 को मैं हम्म। यहाँ आया। हम्म। फिर October 1 से मेरी क्लासेस थी। एंड जो हम्म। फर्स्ट वीक था वो पूरा ओरिएंटेशन के लिए देते हैं ये लोग 10 दिन। और आपने इटली कब अप्लाई किया था? और डिमेलानो का डेडलाइंस कब था? हाँ सर, तो डी मिलानो के लिए मैंने फेब में ही फेब एंड में मैंने अप्लाई कर दिया था मिलानो में। हम्म। हम्म। फेब एंड में मैंने अप्लाई कर दिया था। एंड उसका पॉलिटेक्निको मिलानो का प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल था, उसमें ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन में मांगा ही नहीं था, ना LOR हम्म। वगैरह उतना मांगे थे ना। हम्म। उसका प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट था, उसमें बस ट्यूशन मतलब एक एप्लीकेशन फीस थी, वो मुझे याद नहीं कितनी दी थी मैंने, एक फीस थी उतनी देना हम्म। पड़ा था। बाकी TU म्यूनिक हम्म। में एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री है। हम्म। एंड हम्म। APS लगता है, इसके लिए बस हम्म। ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। हम्म। एंड हम्म। बाकी मिलानो में मैं इसलिए भी नहीं गया क्योंकि इटली का ना वीज़ा प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैंने सुना। ये थोड़ा मुझे लगा कि यार इतना कैसे करें, उसमें हम्म। ईसानदा वगैरह पता नहीं बहुत कुछ रहता है, हम्म। अपोस्टाइल वगैरह कराना पड़ता है, हम्म। तो मेरा उतना हालत खराब हो रहा था भाई। तो हम्म। मेरा एडमिशन हम्म। आया तो मैंने सोचा भाई यही चलते हैं। हम्म। आराम, ये बताओ, जैसे ये आपका भी यूनिवर्सिटीज हैं जर्मनी की, तो इनका सबका अलग अलग टाइम होता है? जैसे TU म्यूनिक है, या RWTH है, या बर्लिन है, सबका टाइमिंग अलग अलग है, डेडलाइंस, या हाँ कैसे सर, होता है? डेडलाइन डेडलाइन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन विंटर का बस शुरू होता है आपको January 15 से लेके हम्म। May 30 तक चलेगा। अब ये हर हम्म। यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। जैसे मैंने जिधर जिधर थोड़ा एप्लीकेशन में देखा था उस टाइम पे FAU को मुझे पता था कि 15 फरवरी से शुरू होता है। आकिन का भी आई थिंक फरवरी या मार्च से शुरू हो जाता है, फरवरी से हम्म। शुरू होता है आई गेस। सो हम्म। आकिन का म्यूनिक का तो शुरू हो जाता है, ये हम्म। जल्दी शुरू होता है जनवरी से ही। हम्म। एंड 31 मार्च तक रहता है, लेकिन आपको TU म्यूनिक में आपको चिंता नहीं करनी है, 31 मार्च तक हम्म। आप कभी भी अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। एंड बाकी फिर मैंने अभी जैसे TU ब्रांचविक का भी ओपन है, हम्म। 15 मार्च तक उनका ओपन है फर्स्ट राउंड के लिए। हम्म। हम्म। एंड मैंने अभी लेटेस्ट देखा था, और उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटीज मैंने उतना देखा नहीं सर, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया था उन सब हम्म। यूनिवर्सिटीज में। एंड हम्म। हाँ, टाइमिंग रहता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जैसे ड्रेसडेन एंड डार्मस्टाड वगैरह है, वो भी बाद में पता नहीं, ये लोग बाद में अप्लाई इनका एप्लीकेशन ओपन होते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है थोड़ा। ये हाँ, लिस्ट आपको एक्सेल, बेसिकली एक्सेल बना लेनी है, ये बना लेने डेडलाइन ये उसमें है। सारा कुछ हम। हाँ, उसमें हम्म। पूरा आप मेंशन कर दीजिए।
but बहुत सा स्टूडेंट ऐसा होता है ना इंडिया में जो प्लान कर रहा होता है कि गेट का रिजल्ट आए, अभी रिजल्ट नहीं निकला उसके बाद हम कर रहे हैं, वो हम्म थोड़ा सा दिमाग में उन्होंने रखा होता है। तो उसके हम्म अकॉर्डिंगली वो लोग चलते हैं। अच्छा आरव, आपके क्रेडेंशियल्स क्या थे? गेट स्कोर कितना था, सीजीपी कितना था, और क्या क्रेडेंशियल चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटीज में एंटर करने के लिए? जो स्टूडेंट सुन रहा है और ये पूछ हम्म रहा है कि क्या मैं कर सकता हूँ, मेरे को मिल सकता है कि नहीं, तो वो कैसे पता लगे कि उसको हम्म क्रेडेंशियल कितना है और क्या इनमें अप्लाई करने के लिए फीस होती है? सर मैंने गेट अपने थर्ड ईयर के गेट के रिजल्ट से मैंने दिया था। सो उस टाइम पे मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंक ये मैकेनिकल में 1800 आया था। तो हम्म। उसमें मेरा गेट स्कोर था आई थिंक 580 था, गेट ओके। स्कोर आई गेस। एंड मेरा दूसरा एक और एक्सी का भी मैंने दिया था, तो उसमें मेरी 640 ऑल इंडिया रैंक आई थी, तो मैंने उसका भी इंक्लूड कर दिया था अपने रिजल्ट में। एंड मेरा जीपीए सर 9.4 था आउट ऑफ हम्म 10। तो जब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम पे भी मेरा 9.4 ही था। तो हम्म उसमें उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। एंड हम्म जीपीए के अलावा सर मेरा पब्लिकेशन था एक। हम्म एंड उसके बाद मेरा एक मेजर प्रोजेक्ट था, तो उसमें हमने हमारा एक ग्रुप था 7 स्टूडेंट्स का। सो वो हम्म एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट था सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का, तो उसमें हम लोग ने डिजाइन पेटेंट फाइल किया था। तो हम्म उसका भी वो पब्लिश हो गया था, तो उसका भी मैंने इंक्लूड किया था अपने एप्लीकेशन में। फिर मेरे हम्म पास इंटर्नशिप्स थी काफ़ी, एनआईटी जालंधर हम्म की इंटर्नशिप थी 6 महीने की। फिर उसके बाद आईआईटी बॉम्बे की 6 मंथ की इंटर्नशिप थी। फिर 2 ऑनलाइन इंटर्नशिप थी 4 महीने की। फिर उसके बाद मैंने मतलब कॉलेज में भी और भी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स किए थे, तो वो सब मैंने इंक्लूड किया था अपने एप्लीकेशन में। एंड इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे वो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि हम्म सिमुलेशन के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो मेरे पास कोर्सेरा वगैरह के सिमुलेशन के पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स थे। मैंने काफ़ी एनपीटीईएल के कोर्सेज वगैरह कर रखे थे, तो वो भी मैंने इंक्लूड किए थे अपने एप्लीकेशन में। सो और हम टिपिकली क्या क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड होते हैं? कुछ सीजीपीए मिनिमम ऐसा कुछ होता है? आप व्हाट इज मिनिमम सर देखिए सर, मिलानो में तो मैं बात करूं, मैंने एक बंदे से बात की थी वो मैकेनिकल में सेम, उसको भी मिलानो बोविसा कैंपस मिला था। एंड उस बंदे का सीजीपीए था 7.4। उसको हम्म तब भी एडमिशन मिल गया था पॉलिटेक्निको मिलानो में, वो भी मैकेनिकल में। मैकेनिकल उनका वर्ल्ड के टॉप 10 में आता है, हम्म वर्ल्ड के टॉप 10 में आता है सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में। तो बस उस बंदे का ये फायदा था कि उसको 1 साल का एक्सपीरियंस था। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपका सीजीपीए ऑफसेट हो जाता है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे आप मेरी तरफ फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर के लिए आप अगर आपका 8+ सीजीपीए तो आपका चांसेस बहुत अच्छे हैं। 8, और जितना ज्यादा आपका सीपीआई होगा उतना ज्यादा बेटर चांसेस हैं। 9+ है ओके। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको उतना फिर चिंता नहीं करना है। 9+ सीपीआई है तो उसके बाद अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो तो बेस्ट है, क्योंकि अगर आपका सीपीए मान लीजिए खराब है, तो आप 1 ईयर 1.5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस लेके आइए, तो बेस्ट केस रहता है। वो आपको यहाँ पे जॉब, आप जब जॉब वगैरह अप्लाई करेंगे, इंटर्नशिप्स अप्लाई करेंगे, तो उसमें भी आपको हेल्प होगा यहाँ पे काफी। हम्म एंड अच्छा। उसके अलावा अगर प्रोफाइल हम्म बूस्टिंग के लिए सर, हम्म मेन तो मैं अगर कहूंगा, अगर आपका सीपीआई लो है तो आप जॉब करके आइए इंडिया से, वो बेस्ट है। अच्छा, ये फीस लगता है कि सब जगह अप्लाई करने में? सर जर्मनी में आई गेस नहीं लगता है। आपको जर्मनी में एप्लीकेशन के दौरान दो ही जगह आपको फीस देनी पड़ सकती है। पहला तो है आपको एपीएस में देना ही देना है, 18,000 था मेरे टाइम पे, हाँ हाँ, एटीन एटीन थाउजेंड थाउजेंड है। आईएनआर था। इस टाइम पे पता नहीं कितना है। एंड इतनी। दूसरा आपको फीस देनी रखती है यूनी असिस्ट की। बस हम्म ये दो, यही दो हम्म मेन कॉस्ट रहता है आपको एप्लीकेशन के टाइम पे। फिर उसके हम्म बाद तो वीजा हम्म वगैरह का फीस रहता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे यार। हम 1 साल का और 2 साल का एमएस, इटली में भी 1 साल का होता है, कई जगह 1 साल का होता है, तो हम्म। जर्मनी में भी 1 और 2 साल का कंसेप्ट है, 1.5 साल का, 2 साल का, क्या कंसेप्ट है वहाँ, और कैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सर 1.5 ईयर्स के भी होते हैं यहाँ पे। हम्म जैसे RWTH का जो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का कोर्स है जिसमें मैंने अप्लाई किया था, तो उसमें 1.5 ईयर्स का मैं आप कर सकते हैं 3 सेमेस्टर्स में बेसिकली। हम्म मैंने तो सर अभी तक यहाँ पे 3 सेमेस्टर्स का ही देखा है, उससे कम का तो देखा नहीं है। हाँ, ये यूके में होता है 1 ईयर का, वहाँ हम्म जनरली 1 ईयर का ही होता है। एंड यहाँ मेजोरिटी जर्मनी में 2 ईयर्स का ही मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं। एंड हम्म पीपल लाइक दे जनरली एक्सटेंड देयर मास्टर्स लाइक स्टूडेंट हम्म स्टेटस वगैरह मेंटेन रखने के लिए। एंड स्टूडेंट से हम्म काफी पर्क होते हैं यहाँ पे, तो पर्क्स हम्म वगैरह के लिए स्टूडेंट हम्म स्टेटस के लिए लोग एक्सटेंड करते हैं ओके स्टडीज। ओके। So I think Aram, we have more or less discussed many things. एंड लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आराम कि ये हमारा वीडियो सुनने का बहुत सा ऐसा कैंडिडेट्स होगा, स्टूडेंट जो आपसे इंटरेक्ट करना चाहेगा, मेंटरिंग लेना चाहेगा, गाइडेंस लेना चाहेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू दैट अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो मे बी स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू हैव सेशन विद द स्टूडेंट्स एंड मेंटर देम फॉर दिस, राइट? यस Okay. यस So सर, आई एम I रेडी। so 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 that was a wonderful interaction with you, Arham.
I wish you all the very best for your academics further, and thanks a lot for your time. Thank you, sir. Thank you very much.